नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमं कल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसबालो मूरहो रसिका भुवि भावुकाः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावळि गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि नीलाद्रिनाथं जगतान्मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपति वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारवेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु आकृष्ण बोली जीव जाऊ आकृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधा दब बोलंती प्रभु भगवान उद्धव शुण मो वचन उद्धव चल तुही एका आश्रम नामे बदरिका आश्रम नामे बदरिका से की तो चरण अधिका सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे तू ब्रह्मा रुद्र विष्णु तुही तो बिनु अन्य गति नहीं। मोर प्रिय भाई और भौणी माने अति बड़ी जगन्नाथ दासन गद्दर रचित श्रीमद् भागवत महापुराण नवाक्षरी चंद्र अनुवादित व्यासदेव कृत संस्कृत भागवतर ओडिया अनुवाद श्रीक्षेत्र धामरु श्रवण करुछंती आपण माने गत अध्याय विभिन्न नामक बानर को बलराम जे कि बड़ ठाकुर भगवान रूप नीलाद्रि कंदर अवस्थित अच्छा रत्न सिंहासन जो बड़ ठाकुर रूप देखुं बड़ ठाकुर दर्शन कर सी कौन कले कौन क्वालिटी थिला कौन ऐश्वर्य थिला बल पराक्रम तेज शौर्य ऐश्वर्य विभूति समस्त प्रकार विषय पचार परीक्षित महाराज कहले जे प्रभु ये मुनिश्रेष्ठ आपण तो खाली कृष्णंकर महिमा कहले रामंकर महिमा टी कहतु बोले राम महिमार केमती जाइए जमुना कूल को जमुना को जो डाकिले मुद्रित लोचन घृमित लोचन बड़ ठाकुर आज्ञा मुहटी मुझे पिला बेले देखे
ମୋତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଗ ଟିକେ ମୋଟା ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବିନୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ମୁଁ ଆଜିକି ଯେତେ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଏତେ ମାନେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ରୂପଟାକୁ ଖାଲି ଭାବିଦେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ ଦେଖନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ମୋଟା ଦେଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କହନ୍ତି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସେ ହଳଧରଙ୍କର ଚରିତ କେମିତି ଯମୁନାକୁ ପ୍ରକୃତ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପାଖକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୂଳରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବା ମାରିବା ପରେ ବଦ୍ଧ କଲା ପରେ ସିଏ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଥିଲା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚରିତ୍ର ମାନେ 72 ଅଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ 73 ଅଧ୍ୟାୟ ବା ତ୍ରିସପ୍ତତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶାମ୍ବର ବିବାହ ବୃତ୍ତାନ୍ତ 73 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯେଉଁ ଶାମ୍ବଙ୍କ ନାମରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହୁଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ପୁଅ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ଗଳିତ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ରୋଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କି ଯାହାକି ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏଇ କୋଣାର୍କ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନତି ଦୂରରେ ସେଇ କୋଣାର୍କକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଛ କଚ କିଏ ତ ଅନେକ ହଁ କିଏ ଦେଖିଛି ଇଏ କ'ଣ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମହିମା ବଢ଼ା ଏମିତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା। ସେଇ ଶାମ୍ବ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଅନତି ଦୂର ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିକି ତାଙ୍କ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କେଉଁ ଦିନ ନା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସେ ଦିନକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସମ୍ବରାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଇ ତିଥିରେ ତେଣୁ ଶାମ୍ବର ଦଶମୀ ଦିନ କିମ୍ବା ସମ୍ବର ଦଶମୀ ଦିନ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଶାମ୍ବଙ୍କର ବିବାହ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂଜା କଲାବେଳକୁ 16 ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ରୂପରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି ଏକା ପୁଅ ରୂପରେ କରାହେଉନି। ଭଗବାନଙ୍କର 16,000 ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ନଥିଲେ। ଆମେ ହେଲେ ଏବେ ପୁଅ ଆମର ହେଲେ ହିସାବରେ 135 କୋଟି ପୁଅ ଝିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବେ ଅଛି ବାହାରେ ଆଉ ବାହାରେ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମିରାକ୍ଲସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୁଷ୍ପାମୀ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶାମ୍ବର ବିବାହ ବୃତ୍ତାନ୍ତ 73 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ହୋ ରାମଙ୍କ ବିକ୍ରମ ଥିଲା ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣା ତାହାର ତନୁଜା ତାହାର ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ତାକୁ ବଳେ ହରିଲା ଶାମ୍ବ ବଳବନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ କୋପେ କମ୍ପିଲା କୁରୁରାଣ ଦେଖ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣମଳା ଆମ୍ଭର କୂଳେ ଦେଲା କଳା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଭୁଲଟା ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ନା ଜାମ୍ବବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାମ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ଇଏ ଜାମ୍ବବାନ ଯିଏ କି ଶାମ୍ବ କ'ଣ କଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ପଡ଼େନି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁରେଛି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲା। କ'ଣ କୋପେ କମ୍ପିଲା ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ କୋପେ କମ୍ପିଲା କୁରୁରାଣ ଦେଖ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ବଳା ଆମ୍ଭର କୂଳେ ଦେଲା କଳା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରି କଦର୍ଥନ କୁଳୁ ହରିଲା କନ୍ୟାଧନ ଆମ୍ଭ ବିଚାରେ ଦେବା ନାହିଁ ଏମନ୍ତ କହି କୋପ ବହି ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ କର ବେଗେ କି କରିପାରିବେ ଯାଦବେ ଆମ୍ଭର ଦେଲା ରାଜପଣ ରାଜ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଯଦୁଗଣ। ଆମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲେ ଆମେ ଦେଇଛୁ 5 ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଦେଇଛୁ ତମେ ଯଦି ଭୋଗ କରୁଛ ଚାକିରି କରିବ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତତେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଛୁ ତୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକ ତାର କରୁଥିବେ ଉପକାର ସିଏ କହୁଛି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି କିଏ କାହାକୁ ଦେଉନି କିଏ କାହାକୁ କିଛି କରୁନି କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମୀର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ଅଧିକ। ଇଏ ଥିଲା ଯେ
मान गोविंद दुर्योधन कहला आम देवा जगह भोग करी आम कन्या हूँ हरण करनेला ये जो अपात्रिक गौड़ कूल आम केस्ट केस्ट ना कूल चुप पकड़े कथा तेणु आम से कन्या को दबानी एहार पाई जेबे बड़े जादवे एहार पाई जेबे छले जादवे आसी बाहुबले आमर तुले युद्ध करी हेले संग्रामे जीवे हारी विमुखे न करिवे रण जोगे देश न इंद्रिगण एमंते करी एक मन भूरिश्रवादे शल्य कर्ण सुजज्ञ केतु सुयोधन आरोही अमूल्य विमान भीष्म द्रोणंग वाक्य पाई कौरव वीरे सज होई एक वार के महादंभ सांब को धरिबा आरंभ कुरु धाइले मन दुखे मिले सांबर सम्मुखे देखी तांग दुष्ट चित्त कृष्ण नंदन सामरथ निज कोदंडे गुण दे रहिला सिंह प्राय होई श्री भगवान श्री कृष्णर पुओ जगन्नाथ आज्ञा पुओ जी से क्या खातिर आज्ञा संपूर्ण डेरी सिंह भाया रथ उपर छिड़ा आमर कका ससुटे कोड़े कि कोड़े पुलिस थाना एसआईटी के सीआईटी पोस्ट थे कोड़े थाना बाबू होते आम जो बड़ीमा कह किसी दिन कह अच्छा मो माउस पु भाई परा से मामू झील बड़ झी जो कहे सी भगवान श्रीकृष्ण सी पुओ कौन कहले बेगे मिले कुरुवीर शुभई मुख राव घोर डाकती धर धर बाणी सिंधु शबद प्राय मणि सांब को जिणीबार आसे बेगे मिले तार पासे रुंधिले अष्टदिग कोणे कर्ण सहिते घोर जणे रुंधिले अष्टदिग कोणे कर्ण सहिते घोर रणे स्वभावे सर्वे धनुर्धर सरोवर सा महाघोर करी बिंदिले दोष दिशे ता देखी सांब महारुषे कोपे ता कंपई शरीर निर्भय गोविंद कुमार क्षुद्र मृगंग मध्ये थाई केसरी जेमंत दिशई श्याम्ब करते गुण घोष शबदे कंपे दश दिश कर्ण सहित षडरथी सांब को बाण मरचंती देखी कुपित कृष्ण सुत बाण मरचे प्रमित कर्ण को पंच बाण बिंधी रथ सारथी अश्व छेदी षडरथी ही मते बाण बिंधिला प्रमिते देखी तार क्षत्रिपण कुरु संगरे घोर रण साधु शब्द उच्च नादे सुमिला कुरुबल मध्य सांब उपरे कुरुवीरे तीक्ष्ण नाराच कोप भरे बिंधी सारथी कले नाश छेदिले अश्वंकर पाश रथ को कले खंड खंड छेदिले हस्तर कोदंड विरथ करी ताकू बड़े बंधन कले अवहे कन्या सहित ताकू धरी मुलिले हस्तिना नगरी कष्टरे कृष्ण सुत जिणी समरे जय प्राय मणि होइले निर्भय निश्चिंत एवं हो शुण नरनाथ ब्रह्मानंदन ता शुणी राम विक्रम परिमाणी मिले तारका भुवने राम गोविंद सन्निधाने उग्रसेनर सभा मध्य कहे नारद मन खेदे शुणहु चतुर्पवर कुरु सभार विचार ताहार कन्या स्वयंवरे सांब जे गला तार पुरे कन्या बलिला अनुमते देखी कौरवे को बजिते उट संग्रामे ताकू धरी रखिले हस्तिना नगरी ए मंत्र कही कृष्ण आगे नारद गले शून्य मार्गे ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण आपण माने जो माने भागवत श्रवण करुछंती जदि कोनोसी कार्य बा कोनोसी परिस्थिति रे आपण नारदंग नाम जदि आप सुंदर उच्चारण कले ताले ता सहित संगे संगे ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण भगवान के नारायण नाम को 3 थर उच्चारण करिवे हेमंत कही कृष्ण आगे नारद गले शून्य मार्गे हेमंत मुनि वाक्य शुणी समरे सज्ज चक्र पाणी पुत्र बंधन शुणी रोषे दारु कराइले विश्वासे बोले रथ साज बेगे ता शुणी चाजिले जादवे उग्रसेनर आज्ञा पाई बीरे चढ़िले आग होई के कहू कृष्ण सैनी चलते के कहू कृष्ण सैनी चलते कंपई मेदिनी बाजई वीर तुर स्वर रथे विजय उग्रसेन देखी गोविंद आगम बोलती प्रभु बलराम ये तो नुहई भल कथा बंधुरे विरोध व्यवस्था से जेबे न जानिया चोरी आंभे केमंत बाद करी तुम्हें न कर मने रोष मुहि जे तांकर विश्वास आज हस्तिना जीवी मुहि उभय कूल भाव वही तुम्हें न कर आगमन शुणी रहिले भगवान जेतेबे भगवान श्रीकृष्ण सैन्य सामंत को धरी सांब कुमार को बंधन मुक्त करने
हस्तिनापुर को जावाई उद्यत हेले से समय कौन कले बड़ ठाकुर भगवान कहले ना तुम जावाक आवश्यकता नहीं मुझे आसू जेहेतु बंधु बांधव भितर जेहेतु सी कन्या को आनी सारी आम संपर्क माउसी भाई युधिष्ठिर माउसी भाई मत माउसी भाई ना तेणु बंधु बांधव मुझे बुझाऊँ गोटे कथा आम जी गोटे प्राइम स्टेज गोटे असुविधा है आम गाँव प्रथम गाँ जो साइड घटना घटुची से कोठू दूचे गाँव को कोठू जड़े दरकार कर दूचे पंचायत को थाना को सब जज कोर्ट को जमी बढ़ी बढ़ी सुप्रीम कोर्ट पर जाऊे सेमती मुझे देखी कंप्रोमाइज हो मूल जिन हूँ गोटे समाधान देखी मुझे बड़ ठाकुर भगवान बाहर समाधान करवा लगे तुम्हें न कर मने रोष मुही जे तांकर विश्वास कहते आप रागतुनि कहीं मुझे विश्वास कौन भी ना निजे दुर्योधन को गदा युद्ध शिखी बड़ ठाकुर भगवान आज हस्तिना जीवी मुही उभय कूल भाव बही तुम्हें न कर आगमन शुणी रहिले भगवान एवंते प्रभु बलराम जादव बल करी साम्य गुरु जादव हित अर्थे बेगे चलिले हल हस्ते आनंदे रेवती रमण कली करिबे निवारण उत्तम विप्रघेनी संगे कूल वृद्धंकु राई बेगे देखंतु गोटे कलिर समस्यार समाधान करियो बोले क्या नवा कथा ये हूँ भागवत शिक्षा उत्तम ब्राह्मण गण एवं जी कूल वृद्ध से जो कूलर लोक वृद्ध मान धरिकी गले आम कौन कर दिए दिए चाउलिया लोक ओष पकड़ा लोक धरी जाऊे कौटे समाधान कले सी पाटी पिटी कले कथा रहा ना प्रकृत लिगेल लाइन जा पड़ो क्या ठीक कथा कह पड़ो सभा कूल वृद्धंगु भी उत्तम विप्र घेरी संगे कूल वृद्धंगु राई बेगे रथे बसिले तोष मणि नक्षत्र मध्य चंद्रजन्ये मिले हस्तिना भुवने दुर्योधन उपवने उद्धव जाई सभा मध्य नमिला धृतराष्ट्र पादे भीष्म द्रोणंक पादे नमी मालिक को परिणामी दुर्योधन को करी साम्य कहिले रामं को आगमन सु दुर्योधन को करी साम्य कहिले रामं को आगम शुणी रामं को आगमन आनंद हुई भीष्म द्रोण सभार उठी दाती कारे मिले रामं को छामुरे बंधु स्वभाव पणे हेजी रामं को षडर्घ्य पूजी कहती मधुर वचन आनंद कले राम मन गुरुंक मध्य धीरवती राम महिमादि जानती भावे न मिले राम पादे बंधु कुशल पुछी बादे राम ही करे तथा विधि जे बंधु कुशल प्रसिद्धि कुरुंक मध्य हल पाणी कहती प्रिय भावे वाणी जे राजाधिराज उग्रसेन जेमंत बोली छि वचन देखंतु भगवान बड़ ठाकुर कैपासीटी थिला निज नार निजर बड़ निज बलिमा कहवा कौन ता बांधी गोटे पुत्राटे को जान मतलब मो विषय तुमको अवगत अच्छे धमक दे कही पारि किंतु ना आईन विरोध कथा जो राज्यर नियम सरकार गाइडलाइन मानव पड़ी कहले जे उग्रसेन बर्तमान तत्कालीन राजा थे तेणु उग्रसेन को आज्ञा अनुसार मुझे आसी जगह को राजाधिराज उग्रसेन जेमंते बोली वचन बेगे करिव सेहि मत आत्मा कुशल जेबे चिंत तुम्हे उत्तम शस्त्रधारी धर्मर पथ नष्ट करी कपट युद्धे कृष्ण सुत धरी मणिले कृष्ण कृत्य ये अपराध आम्भे सही बंधु कुशल इच्छा वही एवंत शुणी राम कथा स्वभावे सर्वे महारथा कुरुनंदन दुर्योधन आवर जेते दुष्टजन आत्मार निंदा प्रायवाणी बलदेवंक मुखु शुणी बदन चाही एक एक गोपे बोलती मन दुखे देख ये चित्र काल गति जहा कहले जदुपति जेते बड़े उग्रसेन राजा निर्देश कथा कहीदे सी राजा बोली स्वीकार करने इच्छा नहीं दुष्ट प्रकृति लोक भगवान श्रीकृष्णर अजा सी भगवान श्रीकृष्ण निजे शाढ़ी प्रदान कर साधारण गवर्नमेंट चाकरी करने मिले आम बल के बढ़िया नौचे आ भगवान जहाँ बलियान कर दुर्योधन कहीं उग्रसेन पावर नणु सी ना बड़ ठाकुर कहले कौन निर्देश जिते शुणिदे माने प्रकृत क्रोधित हेले कौन कहले चर्म पादुका गर्भ बही शिर मुकुट शिरे जाई ये दुष्ट राजा माने भगवान कृष्ण को बलराम को और उग्रसेन को जोता बोली भाविले जो तू कहती पादर पांडुई हुई थिबा को करई चार हेमंत गर्भ यहाँ यहाँ आम्भे बंधु पणे राज्य स्थापिलु सिंहासन नुहंती राजा पणे योग्य आंभर देला
भोग भगवान आमको जन्म देइछन्ति भगवान आमको पालन करछन्ति एवं भगवान आमको संहार करछन्ति ये कथा जो दुष्ट राजा मान मन में नथिला जे पुष्टस्तु भगवान स्वयं तेणु कहले आमे आको राजा पाँच जगह 5 गंटे दुकान ने कलु बाबली को पैसा आइबाला हेले ना नले आमे आकर कोन थिला दरिद्र दिन आमे गोटे कथा कहले तेणु साटायर करके भगवान श्री कृष्ण को कहले कोन भुंजंती आंभ देला सिरी जेणुपेक्षाम्भे करी छत्र चामर जे व्यजन ए जे राज भोग उपादान यांक राज्य ने बाबले गर्भ जे कले मत भले राज्य कुहंती भादन सर्प गुजेन्ने क्षीरदान क्षीर संयोगे बढ़े विष क्षीरदाता को करे नाश आंबर देला अन्न खाई सर्पर प्राय गर्भ बही आंब को आज्ञा दियंती अल्प प्राय मणिछंती देखो आंबर तुले बादे इंद्र न रहे रण मध्य सिंह समूहे जेमेश भय छाड़ स्वर्ग देश कहती सुख मुनिवर शुण हे कुरुंक व्यवहार उत्तम बंधु जने धने गर्भ बहिले दुष्ट मने एवं कुरु दुष्ट वाणी शुणी कोपिले हल पाणी कोपे कृतांत प्राय दिशी कहती पुण पुण हसी जिते बड़े बड़ ठाकुर आगे कहते जो तल को नहीं नहीं जोता पादुका जहाँ जहाँ थी एकदम जो 3rd डिग्री सहित कम काउंटिंग करे चतुर्थ श्रेणी नहीं पंचम श्रेणी ता तल श्रेणी जो नहीं गले अति न्यून करी कहले भगवान बड़ ठाकुर भगवान आउ सहिले से कौन कहले देख ए संसार व्यवहार संपद बड़ई जार असाधुपण आचरती आत्मार शांति न इच्छन्ति बड़ ठाकुर वाणी शुणु कौन कहते भागवतर आक्षरिक अर्थ बुझु जे संसार रे देख ए संसार व्यवहार संपद बढ़ई जार जार आज्ञा चाल पुड़िया ना आज्ञा सी 10 तला बिल्डिंग कला बेले कौन बुद्धि हम ना असाधुपण आचरती आत्मार शांति न इच्छन्ति मो आत्मा केमी शांति हम न विचार कर असाधुपण आचरण करती तांकु बुझाई हस्त दंड पशु को जेमंत लगुड़ ये बड़ खेद मोर मने उग्रसेन अपमाने जदुंग तुले नारायण यांग संगे क्षीरण सकल सैन्य तुले साजी रथ कुंजर नरबाजी नगरु हईले बाहर मुताह न कली विचार यांग प्रिय भाव वही निवारी होइली जे मुई तईर फल हेबे मते दैवे फलिला उचित बड़ ठाकुर भगवान कहते समस्ते मुझे परमाणु बोमा सहित जहाँ जहाँ 303 राइफल द्वारा मुझे पिस्तल खंडा काती जहाँ धरिकी आम सब जदुपुर जाक आसुले तुम पुर को हस्तिनापुर को तुम मुझे ना कहीं जी आम बंधुबांधव कथा बोली अटकी रखिलु तुम मत मुहे मुहे साटार कौच तुम जुता तुम देच आम बिचना ना तुम देच सिंहाचंडा तुम देच राज्य तुम तुम दान आम अजा आम सब अच्छी बोली क्रोधित होइले बड़ ठाकुर भगवान कौन कहले मुझे बुझे आसवा मोर भूल जदि मुझे जो विश्वास कहला मोर विश्वास अच्छी से विश्वास बिना फल जिते फल न फले कदाचित विश्वास कहार कि फलटा मत मिलगला तहिर फल एवं मते दैवे फलिला उचित जे स्वभावे खलमती कल हे रुचि मंद गति देख अवज्ञा मते कले दुष्ट वचन मंद बोले भोज अंधक वृष्टिवंश जार पुत्र वीर कंच जादव कुलर ईश्वर कृष्ण जार अनुचर से कहीं राजपणे साजे देवे खटंती जा समाजे बासव आदि दिग पाड़े सेवंती जार पाद तले सुधर्मा सभा जार द्वारे पारिजातक पुष्पपुरे मर्त्य कर स्वर्ग भोग से नुहे राजा पणे योग्य पद्म संभवा कमलिनी स्वभावे जगत जननी से जारो सेवंती चरणे से काई योग्य राजपणे जार पाद पद्म रज अखिल देवंक समाज पवित्र करे मुनि तीर्थ जेणु से तीर्थंकर तीर्थ ब्रह्मा शंकर आदि मुहि जार अंचे देह बही लक्ष्मी सहिते आज्ञा बही ताहांक रूपा सन काहि कुरुंक भोग आंभे खाऊ अबनी मध्य देह बहु आमे करे बा बंधु बांधव कली झगड़ा करे क्या तो टंका देखो थिला तोड़े पैसा 5 टका हाथ बाथरूम द्वारा अच्छी एवं देखो पैसा बोली आमे लोक जब न्याय अच्छे कहीपर बड़ ठाकुर भगवान कहले पारिजात पुष्प द्वारे लक्ष्मी जार धर्मपत्नी एवं
ଯିଏ କି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ଆମେ ଅଂଶ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କର ରାଜଭୋଗ ନାହିଁ ତମ ବିଞ୍ଚଣାଟା ତମର ଚୌକିଟା ଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ବସୁଛନ୍ତି ନିବେଦନ ନିଷ୍ଠୁର କଥା କାହିଁ କହିଲେ ଏ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କୁରୁଙ୍କ ଭୋଗ ଆମ୍ଭେ ଖାଉ ଅବନି ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହୁ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଉପାନ କୌରବେ ହୁଅନ୍ତି ଶିର ଦେହ। ଉପାନହ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜୋତା ବା ଚର୍ମ ପାଦୁକାକୁ ଉପାନହ ବୋଲି କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବୈଦିକ ଭାଷା ଅନୁସାରେ। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜୋତା ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଶିର ଆଉ ଦେହ। ଯେ ଜୋତାଟା ତଳେ ରହିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ନେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। କେବଳି ପାରେ ହାସଇ ରୁଧିର ମାଂସ ଦେହ ବହି ଦେହରେ ବଳ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଏ ମାରି ବୋଲି ପିଠି ବୋଲେ ମୁଁ ରହିଯିବି ମୋ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ଯାହାଟେ ବଳ ଅଛି ସେ ଧୋଡ଼ ଧୋଡ଼ିକି ଗାଲୁ ଗାଲୁ ଚାରିଟା ଲଗିଦେବ। ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର କଥା କହୁଛ ତମେ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଉଛ 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ରା ନେବା ସରକାର ଦେଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ ଦାନରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ କଥା କହୁଛ ଦେହରେ ବଳ ଥାଇକି କିଏ କାହିଁ ସହିବ କଥାଟା। देख कुरुंक कुलमत संपदे होई अनायत मानी अटंती गर्भ बही के एहा सहे प्रभु होई आज मु देवी प्रतिफल हेमंत बोली तीक्ष्ण तक्षणे गिरी वाम हस्ते बोलंती राम वाम हस्ते तक्षणे गिरी वाम हस्ते बोलंती राम कोपचित्ते क्रोधित ही गले बड़ ठाकुर भगवान घूर्णित नयन घुरी घिरी बुला जेतु अति सुंदर शांत सौम्य मूर्ति कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बड़ ठाकुर भगवान शिवंग अवतार कौन रुद्रंग अवतार कौन शेषनागंग अवतार कौन अति शांत सौम्य मूर्ति धारण कर क्रोधित निष्ठुर वचन कहले बाँ हाथ में लंगड़ा हाथ में धरले कौन कले आज मु एहांकु संहारी पृथ्वी निष्कौरव करी आज मुझे संहार करके पृथ्वी कौरव बोली क्या न रही तेबे से जीवी निज पुर सत्य वचन ए मोहर ए मंत कही कोपे उठी धैले हल दृढ़ मुष्टि रामंक कोप गुरुतर तेज की दहे तीन पुर लंगले हस्तिना उपाड़ी शबद शुभे घड़ घड़ी दक्षिण भुजे सौनंद शून्य देखती देववृंद नगर छाड़ी गंगा जले कौरवे पसंतु पाताले हेमंत बोली हलधर हस्तिना उपाड़िले कर समुद्रे नाव प्राय घुरी कंपई हस्तिना नगरी पड़िबा प्राय गंगा जले दक्षिण कौरव विकले कुटुंब तुले उच्चनादे शरण गले राम पादे। आज्ञा दुर्बलिया लोक डरिले सीना सी डरिकी पड़े जा तू आपण कौन कर पड़ेगा क्षत्रिय जी स्वभाव भगवान अवतार निजे सब अवतार करूँ हस्तिना टेकिरी पानी भूमिकंप भाया होगा हस्तिनापुरटा समस्ते उच्चरे स्तुति कर बड़ ठाकुर कौन बोली कहते कौन पड़िबा प्राय गंगा जले दक्षिण कौरव विकले कुटुंब तुले उच्च नादे शरण गले राम पादे कुमर तुले कन्या नहीं रामर पाद तले नहीं डाकती जीवन विकले भोराम रख पाद तले आम्भे तो स्वभावे निरेख तुर कुमर बधु रख ये कन्या देन शरण पशिलु अभय चरण भोराम तोहर महिमा वेद न जाने गुण सीमा मूढ़ अज्ञान आम्भे हेऊ तो भाव जानी मुटी काहू आम्भे कौरवे अपराधी तुनाथ करुणा बारिधि स्थिति पालन करू जेणु तु शेष रूप धरू तू आदि हेतु निराश्रय निर्लेप एक तू अव्यय तोर क्रीड़ार कंदुक स्वभावे हुए तीन लोक सहस्र सहस्र संख्यारे महीमंडल तोर शिरे सोरिष प्राय अच्छु धरी लीला मात्र के वसुंधरी पालन करू पुणी हरू तेणु तू शेष रूप धरू जे कोप तोर तहु जात से तो अखिल शिक्षा अर्थ हिंसा मच्छर नाही जेणु पालन हेतु तु ही तेणु सृष्टि पालने व्यग्र हेउ तुनाथ सत्वगुण बहु संसार मध्य तोर लीला जेसने बालकंक खेला नमस्ते सर्वभूत प्राण जीवर सकति धारण अव्यय बोलाऊ जगते भूनाथ तोर अनुमते तू विश्वकर्मा ज्ञान सार भूनाथ तोते नमस्कार तोर पाद पद्म तले शरण पशिलु निश्चले सुख बोलंती राय शुण भक्त बंधु संकर्षण कुरुंक दुख भय चाहि प्रसन्न चित्ते दया वही हल संगरी हलधर बोइले नाही तुम्भडर
निर्भये थाओ कुरुजन तक्षणे राजा दुर्योधन कन्या सहित कृष्ण सुत समर्पी रामंक अनेक যৌতুক দেলা শুনহি অভিমন্যু বলা ৬০ বরষ তীক্ষ্ণ দন্ত কুঞ্জর দেলা ১২শত অশ্ব সে দেলা কয়ুতে ৬০ সহস্রে স্বর্ণ রথে রথে দিশন্তি রবি তেজ পুণ আনন্দে কুরুরাজ দুইতা হিতে কুরুপতি সহস্রে দেলা কযুবতী অমূল্য রত্ন কণ্ঠে ভরি দেলা যে দাসী জন করি एमंते कन्यादि जेते राम घेनाई तो सचिते आनंदे रामर संगते आनंदे रामर संगरी केते दूर कुरुबीरे रामं को करी प्रदक्षिण मिले हस्तिना भुवन शंकर शरण तो सचिते मिले धारावती पथे पूरे प्रवेश हलधर देखी न मिले जदुवीर बंधु बांधव जन जेते आनंदे रामं अग्रते कन्या सहित कृष्ण सुत संगे संपद प्रमित देखी हरस सर्वमन सभार मध्य बलराम कुरुंग कृतकर्म कही कृष्ण प्रिय भाव बही भवंती व्यासंग नंदन शुण हो राजा सावधान अद्यापि रामर चरित हस्तिना नगरे विदित राम विक्रम जस अच्छी पुर दक्षिण भागे लक्ष्मी उत्तर भाग नीच दिशे जेन्ने जाह्नवी जले मिशे एवंती रामंक महिमा के कही पारे अंत सीमा से राम पाद तले चिंत कहती दास जगन्नाथ से राम पाद तले चिंत कहती विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंचं संहितायां दशम स्कंदे राम विक्रमे शाम्ब विवाह नाम 27तमोऽध्यायः भीमस्यापि रणभङ्गो मुनिरपि ब्रह्मं अच्युतं मामम दोषन विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।